probability of A dash intersection बड़ा B dash, which will be equal to probability of A union B the whole dash, and probability of A union B the whole dash it will be equal to 1 minus the probability of A union B. तो यहाँ पे भी बड़ो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली थोड़ी ना बेटा ये वैल्यू फाइंड कर पाओगे, तुम्हें पहले यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा बड़ो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चल भाई मुझे बता हाउ यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। You will find the probability of the A union B by using the addition theorem, तब जाके बड़ा सब इजीली सॉल्व होगा। तो चलो आराम से बेटा यहाँ पे तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मिल रहा है तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं बेटा। Since the probability of B dash which is equal to 1 minus the probability of B, and now keep solving 1 minus probability of B, 1 minus 1 by 3, probability of B dash, the answer is equal to 2 by 3. Next, by using the addition theorem, probability of A union B, which is equal to P of A plus P of B minus of P of A intersection B. So guys, start answering. P of A. The answer is 1 by 2. Probability of B is 1 by 3. Probability of A intersection B is 1 by 4. The LCM of yes, very good. So LCM of 2 and 4 is 4. And LCM of 3 and 4 is 12. Make the denominators same. 12. 2 6 are 12. 3 4s are 12. Minus 3 by 12. तो 6 plus 4 is 10. 10 में से अगर 3 गया तो 7. 7 by 12.
Probability of आंसर इज 7/12. चलो अब ये मिलने के बाद यू कैन कंटिन्यू बाय यूजिंग probability of A union B the whole dash. Answer is equal to 1 minus probability of A union B. So 1 minus 7/12. 12 ones are 12. 12 minus 7, it is 5/12. Because of and then you can put up by using De Morgan's law. By using De Morgan's laws. We know that since probability of A dash intersection B dash is equal to probability of A union B the whole dash होगी. तो देख ले इसका भी आंसर अपने पास रेडी है. लिख ले therefore probability of A dash B dash is equal to 5/12. You can number this as 1. राइट हम फ्रॉम 1 और उसके बाद तो फॉर्मूला पता है कि नहीं इसको. फॉर्मूला पता है सब लोग को. What is your aim is to find probability of A dash under B dash. ये देखो आ जाओ आंसर. बहुत बढ़िया है. भाई रेडी है अपना आंसर रेडी. चल वेरी गुड. क्या बात है तुम लोग का. क्या कहना है. वाह वाह वाह. चलो नेक्स्ट. अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी कंप्लीटेड. चलो एंड नाउ we'll start with the next concept which has been based upon
independent event student. Independent event student. While explaining with the types of event student, I will explain to you about the term independent event student. And while studying with the term independent event student, we have learned that the two events. How many events? The two events. The two events. They are being called to be as independent. They are being called to be as independent if the occurring or non-occurring. If the occurring or non-occurring of the one event, if it does not affect the occurring or non-occurring of the other event, then we say that the two events are independent events. The two events are independent events. या तो फिर if the outcome of the one, if the outcome of the one event, if it does not affect the outcome of the other event, then we say that the two events, they are called to be as independent events. So here in this case, ये तो बेसिक नॉलेज हम लोग को पता ही था, but now I will upgrade your knowledge, and in that case I will say that the two events, they are being called to be as independent only if they satisfy the two conditions, only if they satisfy the two conditions, and the two conditions are ये देखो probability of A under B is equal to probability of A under B is equal to probability of A. Second condition, it is on the next page. And that second condition is the probability of B under A is equal to probability of B. Mark this as very important. You will have to learn this. Mark this as very important. Probability of A under B is equal to probability of A, and the second condition is the probability of B under A is equal to probability of B. तो इसका मतलब बड़ा तुम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए. When I am saying that the probability of A under B, if it is equal to what a probability of A, what it means? But it means that के B का आउटकम चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ ए. इसलिए तो आंसर में चेक करो ना, राइट हैंड साइड में मैंने सिर्फ वहां पे पी ऑफ ए ही दिया है, वहां पे मैंने बी को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं है. या फिर इवेंट बी चाहे अकर हो या ना हो, उसका कोई भी इफेक्ट ए के ऊपर नहीं होने वाला है. इसीलिए तो ये देखो तुम लोग को आंसर में सिर्फ ए मिला, बी वहां पे दिखाई नहीं है. And same thing, it is with respect to second condition. Probability of B under A, it is equal to probability of B. That means A event चाहे अकर हो या ना हो, उसका कोई भी इफेक्ट B के ऊपर नहीं होगा. या तो फिर outcome of the event A, it is not going to affect the outcome of event B. So we can say that the two events are independent. And now
आफ्टर नोइंग दैट, जैसे मैंने कहा था बेटा, ये देखो, यू विल फाइंड ऑन सेकेंड पेज, मैंने बोला था ना, ये कंडीशन देखो वहां पे दिया हुआ है, probability of B under A is equal to probability of B. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। And after this, again a very important part, if the two events A and B are independent events, if A and B are the two independent events, then the following pairs of events, then the following pairs of events, they are been also considered to be as independent. They are also been considered to be as independent. अगर A and B अगर A and B दो independent events है तो उसके साथ साथ there are three pairs of events which will be considered to be as independent, and that three pairs of events are number one A and B dash, number two A dash and B, and number three is A dash and B dash. Mark this again important. Mark this as again important. मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा दूँ? If A and B are the two independent events, तो उसी के साथ साथ बड़ा A and B dash भी इंडिपेंडेंट होगा, A dash and B बड़ा वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा बड़ा, और उसी के साथ साथ बड़ा A dash and B dash will be also considered बड़ा to be as the independent events. And after that bड़ा, once again we are going to study about the multiplication theorem. मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोग को पहले ही बोल दिया था, राइट, कि मल्टीप्लिकेशन थियरम हमें ये पूरे चैप्टर में दो बार पढ़ना है, मैंने कहा था. We are going to study the multiplication theorem for the two times. One, it will be for the conditional probability, and second, it will be for the independent events. लास्ट टाइम जो तुम लोग ने पढ़ा था वो तुम लोग ने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ा था, और आज जो तुम लोग पढ़ने वाले हो वो तुम लोग पढ़ोगे फ्रॉम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ये देखो, if A and B, A and B,
are the two independent events. If A and B are the two independent events, then the probability of occurring both the events, point to be noted, probability of occurring both the events together is given by is given by बड़ा both बोला है, both means it will be and, both means it will be and का मतलब बेटा यहाँ पे होगा intersection and the formula for that बेटा it will be ये probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. And now there comes a बड़ा question mark कि सर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बड़ा वेरी सिंपल, ये देखो ये फॉर्मूला बड़ा जो डिराइव हुआ है ये बड़ा हम लोग ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा ना, वहां से डिराइव हुआ है। ये देखो probability of A intersection B is equal to A probability of A into बड़ा probability of B under A। बेटा अभी अभी तुम लोग ने पढ़ा था अभी कि if the two events are independent events, ये देखो it is but obvious कि they will satisfy the बड़ा condition probability of B under A it is equal to probability of B। तो ये देखो फॉर्मूला देखो आ गया यहाँ से कि probability of A intersection B it is equal to probability of A into probability of B। बट मान लो कि यहाँ पे सावियो बड़ा जीत करे, रोने लगी और कहने लगी सर नहीं मुझे उसको सेकेंड फॉर्मूला से डिराइव करना है। ले भाई कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of B into probability of A under B। बट बेटा तुम्हें तो पता है कि द इवेंट्स आर बड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो बताओ सब लोग एक साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी इज इक्वल टू क्या होगा? अभी अभी सिखाया था मैंने। वेरी गुड, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब भाई तुम लोग ही मुझे बताओ कि पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बोल लो या पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बोल लो, एकच आहे की वेगळं वेगळं? Yes,
एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो बड़ा सावियो भी यहाँ पे चुप हो गया, बड़ा खुश हो गया, है कि नहीं? कोई भी फॉर्मूला यूज कर बड़ा, कोई भी आंसर विल कम एग्जैक्टली बड़ा वन और द सेम बड़ा, है कि नहीं बड़ा? ये मैंने तुम लोग को बताया बड़ा, ताकि तुम लोग को बड़ा कभी जिंदगी में बड़ा अफसोस ना रहे कि सर ने कभी हम लोग को पढ़ाने के टाइम ये सब बताया नहीं कि ये फॉर्मूला सब कहाँ से आया बड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? जिंदगी में तुम्हें कभी बड़ा अफसोस नहीं होना चाहिए बड़ा कि सर ने कभी हम लोग को सिखाया नहीं बड़ा। ये फॉर्मूला बड़ा हम लोग ने डिराइव किया है फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बड़ा। इसीलिए बड़ा प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाने के टाइम बड़ा पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाना चाहिए बड़ा, और उसके बाद ही फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ सकते हैं बड़ा। क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है बड़ा, दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कुछ समझे बड़ा कि नहीं समझे? समझे। अब सब लोग को बड़े ये जो फॉर्मूला है वो सबको इजी लग रहा होगा, और सब लोग बड़ा खुशी के मारे पागल हो गए होंगे, और ऐसा ही लग रहा होगा कि सर अब हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ऐसा तुम लोग सोच रहे हो तो एकदम ही रॉन्ग सोच रहे हो। ये फॉर्मूला हम लोग कभी भी कहीं पे भी बड़ा यूज नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बड़ा सिर्फ और सिर्फ बड़ा तभी यूज हो सकता है बड़ा जब तुम्हें पता हो कि given events are the independent events whenever in the given sum bro, when you are being known bro, कि the events are bro, independent events bro, events are bro, independent events bro, तो ही तुम लोग बड़ा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला बड़ा कहीं पे भी यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बड़ा। समझा बड़ा तुम लोग को सबको? चलो नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे बड़ा डाउट है, जो तुम लोग एक एक करके बड़ा मुझे बताओगे कि सपोज अगर सम सॉल्व करने के टाइम मैडम मुझे फाइंड करना है मैडम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बड़ा बी डैश, तो उसका आंसर क्या होगा मैडम? कोई बता सकता है? तब उसके लिए बेटा डरने का नहीं। फॉर्मूला बड़ा विल रिमेन वन और द सेम मैडम। मैंने बड़ा मस्ती की है किसके साथ? बी के साथ, तो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बड़ा बी डैश। This will become but a probability of A dash into but a probability of B dash. Okay बेटा? एंड उसके बाद नंबर 3 probability of A dash intersection B. Answer is equal to probability of A dash into probability of B. अब तुम लोग सब लोग बड़ा यही सोच रहा था ना कि सर ये फॉर्मूला तो ए एंड बी के लिए था, तो यही फॉर्मूला आपने ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी, ए डैश एंड बी डैश के लिए कैसे यूज कर लिया? यही सोच रहे हैं ना बेटा तुम लोग सब लोग? बट अभी अभी मैंने तुम लोग को सिखाया था
if A and B, if they are the two independent events, so there are three pairs of events which are also considered to be as independent. बोला था मैंने ऐसा मैडम? तो चेक कर लो यहाँ पे मैडम, मैंने जितने भी बड़ा फॉर्मूलाज यूज किए हैं मैडम, वो सारे के सारे बड़ा फॉर्मूलाज मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ही बड़ा यूज किए हैं मैंने. चलो नेक्स्ट मैडम. तो मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा मैडम कि सर आपने हम लोग को जितने भी फॉर्मूलाज दिए वो सिर्फ आपने हम लोग को 2 इवेंट्स के लिए ही दी मैडम. तो क्या हम लोग यही फॉर्मूला 3 इवेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज बड़ा यस. आंसर इज बड़ा यस. उसके नीचे ये बड़ा देखो, इफ ए बी एंड सी आर द 3 बड़ा independent events.